ग्रेविटेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोर ओवर डुप्लीकेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है विद सम पार्ट, दैट इज व्हाट सैटेलाइट, सैटेलाइट का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले न्यूटन्स लॉ। The Newton's law is basically the inverse square law. Inverse square law कौन सा है? और एक कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ इज ऑल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। बायट-सैवर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो what this law says, the force proportional to, हम इक्वल लिख देते हैं, that's gravitational constant, the two masses upon r square, that is force between two point masses, ठीक है, the force between two point masses, right? So ये conditional है, conditional is what, ये point masses होने चाहिए, it is not like you are applying them for a definite shape of body। हाँ, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं फॉर spherical bodies with uniform mass distribution, spherical with uniform mass distribution, and उस केस में हम इनको point mass assume करेंगे at their center। तो if we have the spherical bodies, the two spherical bodies, then the r is center to center, r is measured center to center, right? G is gravitational constant, which is also called as universal gravitational constant. Why it is called universal? Because like it will remain same everywhere। like जैसे अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो what is the Coulomb's law? F is equal to K Q1 Q2 upon R square। This K is not a universal constant, that change with the change of medium, while G is same for all mediums, so that's why this Newton's law represent the gravitational force of attraction between two point masses irrespective of a medium, किसी भी medium में हो। This law is applicable to microscopic as well as macroscopic bodies, यानी you can apply it for the two protons within the nucleus and you can apply for two stars in the universe, okay? इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now gravity, gravity is what, if suppose we have a heavy body and this is suppose a light body, then this light body will be pulled towards this heavy body, correct? So what we say, this light body is in gravity of this heavy body, right? So accordingly we have gravity of earth. Gravity of earth means one of the body involved is earth and other bodies are around it, like we are other bodies, so we are in gravity of earth। So because of gravity of earth we are pulled towards the center of earth, लेकिन हम सेंटर पे जा नहीं सकते तो हम सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। So because of this gravity, earth is pulling every body towards the center of earth। Then gravitational acceleration, what is gravitational acceleration? The acceleration with which earth pulls an object towards its center। like if this is earth and ये एक body है
it is always pulled towards the center of earth. So the acceleration with which it is pulled is called the acceleration due to gravity. The value of g is moreover taken as 9.8 meter per second square. (9.8 meter per second square), correct? Now the value of g change in different location. Okay, so how the variation of g takes place? Variation of g. Variation of g में first with altitude, यानी जैसे जैसे हाइट चेंज होगी तो g की वैल्यू भी चेंज होगी. विथ डेप्थ, यानी इनसाइड द अर्थ जाएगा तो g की वैल्यू चेंज होगी. विथ रोटेशन, with shape of earth. So these are the few parameters, by this we have the variation in g. अभी सारे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, now सबसे पहले let's calculate what is at the surface of earth. At surface of earth, at surface of earth मान लो ये अर्थ है और ये एक बॉडी है m and the mass of earth is m. तो obviously the distance of earth and the body is equal to radius of earth. So force कितनी होगी? Force on m, F is equal to g m upon r square, and एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स पर यूनिट मास. तो दिस इज व्हाट जी एम अपॉन आर स्क्वायर. इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ जी, वी नो द वैल्यू ऑफ एम and we know the value of r. So this comes out as 9.8 meter per second square. First, variation is with altitude. Variation with altitude. ये अर्थ है, ये बॉडी है m, ये अर्थ का रेडियस r, ये हाइट h, एंड टोटल मिला के r. तो g at height is equal to gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? स्मॉल r, राइट. एंड स्मॉल r की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा? r प्लस एच होल स्क्वायर. इसमें से हम r कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर. सो दिस बिकम व्हाट? जी एम बाई आर स्क्वायर इज जी एट सरफेस ऑफ अर्थ.
दिस इज जी, वी आर टेकिंग एट सरफेस ऑफ अर्थ, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, दैट इज ड्यू टू ऑल्टीट्यूड. Now there are some special cases. First, h is very less than r, that is few kilometers. वेरी लेस देन आर यानी कुछ किलोमीटर्स. तो इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई कर दो, तो जी एच विल बिकम जी 1 माइनस 2h बाई आर, राइट. द सेकेंड केस, h is negligible, that is few meters. कुछ meters. तो we take this equal to g. इसीलिए कुछ मीटर की अगर हाइट होती है तो हम g का वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, g के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, राइट. ग्रेटर देन आर तो इट इज कंपेरेबल टू आर हो गई ना, फिर तो ये यूनिवर्सल मेथड है, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन अगर ग्रेटर देन आर है तो. ओके, नाउ दैट इज व्हाट वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड. विद डेप्थ, with depth means it is inside the earth surface. The point where we are finding is this, which is at a distance small r from the center and at a distance small d from surface. So at depth ये derive करना पड़ेगा, तो हमको जरूरत नहीं है, that is gm r upon r cube. This r is what? Distance from center. Okay, and this will be r की जगह हम रखेंगे कितना, r माइनस डी. So this will come out as g 1 minus d by r. ये डिराइव करके आया, राइट. अब अगर हम अर्थ के सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक g का ग्राफ ड्रॉ करें, g की वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करें, सो इट विल बी लाइक, ये अर्थ का सेंटर, ये r डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ये g की वैल्यू, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन टिल surface and it is maximum at surface and then it will decrease like this. सेंटर से लेके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसको देखो तो G is proportional to R. That is what? Directly proportional to distance from center. तो distance from center बढ़ता जाएगा तो G की वैल्यू बढ़ती जाएगी. Outside G is inversely proportional to R square outside earth surface.
तो फिर ये कम होने लगेगी. तो वेयर इज मैक्सिमम? सो इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस. सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है. ओके. ये जो डिराइव करना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेगी ना, उसमें आएगा अपने आप. ठीक है, वो भी सिर्फ रिजल्ट याद करने. हाँ, ओके. With shape of earth, अर्थ क्या है? इट इज थोड़ा सा फ्लैटेंड है. लाइक दिस वे. हाँ, परफेक्ट स्फीयर नहीं है. तो यहां पे ये हो गया रेडियस फॉर द इक्वेटर और ये हो गया रेडियस फॉर द पोल. तो रेडियस एट इक्वेटर is greater than radius at pole. So acceleration due to gravity at equator is less than acceleration due to gravity at pole. रेडियस कम हो गया, डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो पोल का डिस्टेंस सेंटर से कम है, इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है. राइट? With rotation of earth, right? ये अर्थ है. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहां पे है, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन दिस सर्कल एंड इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. It will experience a centrifugal force which will try to push this object outward. तो अकॉर्डिंगली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐड होगी तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो ये डिपेंड करता है इसकी लोकेशन क्या है. हम अर्थ के सेंटर को उस लोकेशन से मैच कराएं तो ये जो लाइन है, दिस लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, ये लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. सो व्हाट इज द चेंज? वो डिपेंड करता है, व्हाट इज द चेंज वो डिपेंड करता है कि किस लैटिट्यूड पे है. एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड इज जी जो कि जनरल है सरफेस पे विदाउट रोटेशन, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेयर ओमेगा इज स्पीड ऑफ रोटेशन. ओमेगा इज स्पीड ऑफ रोटेशन. राइट? वेरी कैसे करेगा? स्पीड तो अर्थ की फिक्स है. यहां पर लैम्डा 0, at equator lambda is equal to 0, तो that is g minus r omega square. At poles lambda is equal to 90, तो g at poles is equal to g, यानी रोटेशन का पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, राइट. The next comes
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज a phenomena which appear because of interaction among the two bodies. पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है. अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. एज वी डू इन आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती. ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है. अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी. द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस लेस देन जीरो, and this represent the bound state of the system. Bound state of system यानी the system is bound. जो दो bodies involved है वो आपस में bound है. तो accordingly हम बताते हैं how we define the potential energy, work done या work required to separate them infinitely apart. Work required to separate them infinitely apart. क्यों? Once infinite separation is there, there is no force of interaction. Up to infinite separation, there will always be force of interaction. तो infinite distance पे जाके force of interaction नहीं होगा तो potential energy क्या हो जाएगी? जीरो. So अब gravitational में सिर्फ attractive forces involve है तो potential energy हमेशा क्या होगी? नेगेटिव ही होगी. राइट. मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जीरो. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. राइट. नाउ एट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ and object of mass at distance r between earth and object of mass m, the potential energy is minus g m m upon r. right? like ये हमारा अर्थ है कैपिटल M, और इससे r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, तो ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है. राइट. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है. सिस्टम मीन्स एटलीस्ट टू बॉडीज आर इन्वॉल्व. कभी भी सिंगल बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता. क्यों? अकेली बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी कैसे? ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं? हम जनरली बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है विच वी नीड टू क्लियर दैट. लाइक ये अर्थ है, ये एक ऑब्जेक्ट है मास m विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम अर्थ. सो व्हाट वी यूजुअली से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m u is equal to minus g m m upon r. Now you tell me, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं. सिंगल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m की नहीं है, पूरे सिस्टम की है. ठीक है. लेकिन हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो हम इसको एक ही ले लेते हैं, स्मॉल m की ले लेते हैं. ऐसा कब होता है? इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m, इफ
m is very very less than capital M. So that is the condition, और जो कि हम यूजुअली फॉलो करते हैं. अब अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसका मास नेग्लिजिबल है, तो हम सारी इसको एनर्जी ले लेंगे. इसको और डिटेल में समझते हैं कैसे होता है ये. ये मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं विच आर आइडेंटिकल, जो कि आइडेंटिकल है. ठीक है, हमने इनको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फोर्स तो है इनके बीच में, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है. जैसे ही मैं इनको छोड़ूंगा, they will move. If I talk about after 1 second, अगर ये x डिस्टेंस मूव किया तो ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि आइडेंटिकल है. अगर ये x डिस्टेंस मूव किया तो ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा. मान लो एट दिस पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस रह गया r डैश. नाउ डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? इन्फिनिटी पे. तो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. एंड वी यूजुअली से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है? कम हो रही है. वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. अगर इसने यहां पे स्पीड v एक्वायर की तो इसने भी v ही एक्वायर की होगी. सो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गो टू द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. एम आई करेक्ट? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, क्योंकि स्पीड तो दोनों को मिली, तो दोनों की एनर्जी काउंट करेंगे. राइट? ये सिस्टम समझ में आ गया? अभी बाद में वापस ले आएंगे. अब दूसरा देखते हैं. ये अर्थ है, ये एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m. अगेन the distance between them is r. Force same होगी. Now tell me, if it move by a distance of x, how much will it move? Negligible. ठीक है, almost no movement. ठीक है. अब ऊपर से तुम एक पैन फेंकोगे तो अर्थ मूव करेगी क्या? नहीं, नो मूवमेंट. सो दिस इज, इफ इट एक्वायर ए स्पीड v, तो इस अर्थ की स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अर्थ अप्रोचेस टू 0. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर. अर्थ तो है ही नहीं. समझ में आया डिफरेंस? राइट? कि कब हम सिंगल बॉडी की ले लेते हैं और कब हम सिस्टम की लेते हैं. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग दिस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट. अगर एक का मास दूसरे से नेग्लिजिबल है, छोटे वाले का, तो सारी की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट उसको मिल जाती है. ठीक है? लाइक एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो ये एक यूरेनियम न्यूक्लियस है. कितना होता है? 232 मास नंबर. बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, 235 होता है. यूरेनियम के कई सारे होते हैं, 235, 236, 238, है ना. अब मान लो ये एक अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट कर दे या एक प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट कर दे.
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर मैकेनिक्स, if the proton will go here, the nucleus will go here. This is mass 1 and the remaining mass is how much? 235 minus 1, that is 234. What do you feel? ये जाएगा पीछे? नहीं जाएगा. So in this case we take whole of the energy to this. ठीक है? But if this disintegrate into thorium and krypton, बेरियम एंड क्रिप्टॉन है ना, क्या होता है, राइट, जो कि आइडेंटिकल है, तो फिर दोनों की एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, राइट. सो वी नीड टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ बॉडीज आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंटरैक्शन. ठीक है, अब मैं बोलूं ऊपर से एक सैटेलाइट, जो हमारा मैन मेड सैटेलाइट है, वो गिरा, कितना वेट होगा उसका? 50 टन, 100 टन, 200 टन. इन कंपैरिजन टू अर्थ तो कुछ भी नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसको अप्लाई कर देंगे, अर्थ पे नहीं करेंगे, राइट. तो आई होप सो समझ में आ गया होगा, राइट. इफ द masses आर कंपेरेबल, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिवाइडेड टू बोथ. इफ masses आर नेग्लिजिबल, एक की एनर्जी नेग्लेक्ट हो जाएगी और दूसरे को मिल जाएगी. Energy is P square by 2m. Energy is P square by 2m. By the conservation of momentum, क्योंकि interaction forces क्या है? Internal forces. तो momentum तो सिस्टम का सेम रहेगा, यानी जितना मोमेंटम इसे मिलेगा उतना मोमेंटम उसे मिलेगा. लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट यूरेनियम न्यूक्लियस एंड दैट. तो जितना मोमेंटम प्रोटॉन को मिलेगा उतना यूरेनियम न्यूक्लियस को भी मिलेगा. तो मोमेंटम तो दोनों के लिए सेम हो गया. तो एनर्जी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो इफ मास इज 10 to the power 6 टाइम्स, एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई. हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. What is that? Any change in potential energy will convert into kinetic energy. Any change in potential energy will convert into kinetic energy. Right? Like if we throw an object from ground, as it goes up, so because of attractive forces, it is retarded. If it retards, then kinetic energy decreases, but in the meantime potential energy increases, right?